They have been silent, but what if I told you they are more emotionally overwhelmed than ever before? The Seven of Cups. This card was the first card that flew out. And trust me, this person is not okay. They are definitely missing you. In today's no contact reading, we'll uncover what they are really feeling, what they are not telling you, and is there a real future ahead? Should you be waiting or should you just move on? Hey beautiful souls, welcome back to my channel, The Amethyst Healing. I am Manisha Pathak, a tarot card reader, numerologist, energy healer and a life coach. And I'm here to bring clarity to your spiritual and emotional journey. This is a timeless love reading for those in no contact. So trust what resonates and leave the rest. Let's begin. Okay, so this was the card that came out. But before I dive deep into the readings, subscribe my channel so that you can watch more such videos. Okay, the other cards that came out with this card were these. So Seven of Cups definitely is a card of, you know, dreaming about someone. They are definitely thinking about you. They might have other prospects also in their mind, but you are definitely one of those. ठीक है, हाँ, ये आप बोल सकते हो कि then how is it a good thing? It might not be the best thing, but they are thinking about you. ये अपने में एक अच्छी बात है. If you are thinking about the reconciliation aspect, right? I hope इतना clear है, because they are confused. They are not able to completely, you know, move on from you. उनको ये भी fear है कि you might maybe reject them. Maybe they are you know, fearing their vulnerability कि मैं breakup करके गया था या गई थी, अभी वापस कैसे आऊँ. So all those things are creating fears in him. ठीक है, तो वो vulnerable होने का डर. So that is why, you know, he is kind of running from them, and that is why maybe he is not coming up and communicating also. ठीक है, but second card, this being the second card, so उनको ये भी पता है, लाइक ही और शी नोज दिस, दैट यू आर देयर इमोशनल सेफ स्पेस, कि मतलब आपके साथ वो जितना फ्री या जितना नर्चर्ड या जितना लव्ड फील करते हैं उतना वो किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं. द इमोशनल सेटिस्फैक्शन, द कंटेंटमेंट दैट यू गिव देम, वो वार्मथ, वो लव, वो अफेक्शन उन्हें किसी और के साथ कभी फील नहीं हुआ है. ठीक है, दे डू रियलाइज नाउ दैट हाउ इमोशनली सेफ दे फील विद यू. ठीक है, एंड एक्चुअली यू नो, फीलिंग इमोशनली सेफ इज एक्चुअली टफ आजकल के दिन में, है ना. मतलब लोग बहुत ही सुपरफिशियल टाइप ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं और दूसरों को रखते भी हैं, है ना. बट हेयर ही फील्स दैट विद यू, कि मतलब यू नो, एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट है. मुझे यहाँ पे आके जो वार्मथ फील होता है वो मुझे कहीं और नहीं फील होता है. ठीक है, एंड इट इज लाइक ही जस्ट फील्स कि शायद वो अगर वही अपनी वल्नरेबिलिटी लेके आएंगे तो यू आर सच पर्सन कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, बट उनके अंदर डर भी है, क्योंकि यू नो, यू सी द लास्ट कार्ड दैट वाज हेयर. कौन सा हार्ट ब्रेक करके गए थे वो आपके साथ. ठीक है, किस टाइप की फीलिंग में आपको छोड़ के गए थे, एंड दिस इज द रीजन वाई दे फील कि अगर वो आपके पास आएंगे तो यू माइट नॉट, यू नो, एक्सेप्ट देम फुल्ली. वो वाली चीज का एक डर उन्हें है कहीं ना कहीं. ठीक है, सो दैट इज वाई दे आर नॉट, यू नो, स्टिल कमिंग बैक उतना पूरे तरीके से. ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट कार्ड वॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स. ऑल्दो आप ये भी देखो कितने सारे, यू नो, फेस कार्ड्स हैं, कोड कार्ड्स हैं. सो ऑटोमेटिकली यू आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीपल इन देयर लाइफ. ठीक है, ये तो डेफिनेटली है, इतने सारे कोड कार्ड्स ये बात बताते ही हैं. ठीक है, बट कमिंग टू दिस कार्ड, आई थिंक दिस कार्ड कमिंग विद दीज अदर कार्ड्स, ये अपने आप में ये शो कर रहा है कि यू नो, देयर पैशन फॉर यू नेवर डाइड. वो आपके लिए जितना इंटेंसिटी में फील करते थे, दे स्टिल फील दैट वे. ठीक है, सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, कुछ गड़बड़ था, कुछ बहुत सारी चीजें ऑफ द ट्रैक थी. ठीक है, बट दे physically also they still feel very drawn to you. मतलब वो physical attraction, emotional attraction, all those things are still there. वो passion, वो desire, and in fact even, you know, in some cases jealousy also. उनको शायद jealous feel होता हो आप किसी और से बात करते हो, या you know, he or she might still stalk you कि देखें इंस्टा पे क्या कर रहे हैं या फेसबुक पे क्या कर रहे हैं. मे बी, आई डोंट नो. मतलब वो एक स्टॉकिंग की, थोड़ी सी सेंस ऑफ स्टॉकिंग की फीलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, बट दे आर ट्राइंग टू एक्ट एज इफ दे हैव मूव्ड ऑन, और दे आर, यू नो, इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. मुझे तो कुछ नहीं फील होता, मैं तो स्ट्रॉन्ग फ्रंट शो कर सकता हूँ. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, बट इन रियलिटी वो बहुत ही वल्नरेबल है एट द मोमेंट. ठीक है, एंड देन दिस कार्ड कमिंग अप, नाइट ऑफ कप्स. डेफिनेटली दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, बट वेरी वेरी स्लोली. दिस इज अ स्लो मूविंग कार्ड. ठीक है, एकदम से नहीं होगा, जल्दी से नहीं आ जाएगा कुछ भी. ठीक है, बट दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट टू यू, एंड यू नो, मे बी काइंड ऑफ एक्सप्रेस देयर लव, और मे बी, यू नो, कम विद अ प्रपोजल. आप देखो अगर इस कार्ड को, तो कैसे द पर्सन इज, यू नो, हैविंग फ्लावर्स इन देयर हैंड, एंड ये
हॉर्स भी है, सो मतलब काइंड ऑफ टेकिंग यू ऑन अ डेट, वो मेरा ये है प्रिंस है, मिस्टर परफेक्ट है, दे आर कमिंग, समथिंग लाइक दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड. ठीक है, मिस्टर परफेक्ट टाइप की एनर्जी का कार्ड है, लड़की भी है तो मिस परफेक्ट. ओके, सो दैट इज व्हाट दिस एनर्जी, दिस कार्ड इज कैरिंग विद इटसेल्फ. ठीक है, बट डेफिनेटली उनको ये डर है यू नो ऑफ रिजेक्शन, एंड दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू टेक थिंग्स स्लो. बट दिस कार्ड, you know, the last card of this pile was Ace of Cups, which again shows 7 of Cups से Ace of Cups की journey, मतलब confusion to clarity. इससे ज्यादा क्या चाहिए? They will eventually make up their mind, you know, because a new beginning is definitely possible. ये heartbreak से, confusion से, ये सब होते हुए हम finally उस तरफ पहुंचेंगे where you both are healed, where you both are emotionally ready, where your ex will now start to understand their own emotions. ठीक है, maybe possibly for the first time. इससे पहले उन्होंने कभी emotional aspect की डेप्थ्स में जाने की कोशिश ही नहीं की होगी, बट दिस टाइम दे विल ट्राई एंड दे विल कम टू दिस फेज. ठीक है, देयर इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी है, बट हायर लेवल ऑफ लव है ये ओल्ड पैटर्न्स नहीं है, ये पुराने वही गिले शिकवे, डाउट्स, कंफ्यूजन्स, ब्लेम्स, वो सब नहीं है. दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग दैट इज कमिंग हियर, दैट आई कैन सी. ओके, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम दीज कार्ड्स इफ एनीथिंग एल्स दैट इज देयर दैट वी नीड टू नो. Cards, please tell us. Our angels, our guides, please tell us what other thing do we need to know here. What? Ooh. Okay. So, you see the first card? You desire love. You are definitely lovable, and that is what they are thinking about you. You are lovable. It was my mistake that I did all this, that I did. है ना, मतलब ये definitely they feel for you. इससे ज़्यादा deeply वो क्या बताएं, they are in, you know, in fact even trying to, अब वो Cupid arrow hit करेगा, वो वाला अब फेज में दैट पर्सन इज. ठीक है, योर एक्स इज इन दैट फेज की, यू नो, ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू. ये वाटर जिस इंटेंसिटी से बह रहा है, वाटर इज ऑल अबाउट इमोशंस, है ना, तो वो जिस इंटेंसिटी से इट इज फ्लोइंग, यू कैन सी कि कितना डिजायर है उनके अंदर टू बी विद यू, राइट. एंड द नेक्स्ट कार्ड, सी, ट्रू लव. मतलब अभी एक्सप्लेन करना बाकी है क्या? आई थिंक इसके बाद तो अब आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज, यू नो, कमिंग हियर, किस तरफ जा रहे हैं हम. ठीक है, दिस इज द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम. दिस कैन एक्चुअली लास्ट अ लाइफ टाइम. ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड कमिंग हियर इज कोड डिपेंडेंसी. सो डेफिनेटली जो भी हमारा एक दूसरे के ऊपर कनेक्शन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, विच विल इन द टाइम टू कम इट विल हैपन, वो बहुत ही लाइफ टाइम तक के चलने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी फॉर द बोथ ऑफ यू. ठीक है, सो you know, just keep manifesting. You don't have to lose hope, because I can see, and you can also see the cards that are coming up, कि कितना directly वो आपको उस side ले जा रहे हैं, कि things can actually, you know, go from 7 of cups to this ace of cups, and then this true love coming up. What all is this? ये वही चीजें ही तो बता रहा है कि how things are going to get beautiful now, right? So any other thing, any last thing, angels, guides, that we need to know about this relationship, about them coming back, any other thing that we need to know, that we need to keep in mind? Okay, first is rebirth. See, such a beautiful energy. कि you know, this phase of this relationship now is a rebirth. ये एक नए तरीके में अब स्टार्ट हो रहा है. rebirth with number 10. 1 plus 0 is 1. 1 is the number of new beginning. तो कैसे हम एक अब नए फेज की तरफ जा रहे हैं. And if you see Ace of Cups, this is also a number 1 card. Ace is 1. And here also. So you can see how beautifully correlated these two cards are. Definitely rebirth हो रहा है relationship का. All the ego, the domination that were there maybe before in the relationship, वो सब हट के एक peaceful energy में आ रहा है. You can see the, you know, beauty of this card, the two dimensions that this card is having, and ये दोनों नीचे camel. So all this is a very beautiful energy of the rebirth की मैं क्या था, क्या relationship हमारा था, and अब क्या हो रहा है. It is that type of energy. Fighting for all the fights that you have put up, for all the things, for all the negative things that you have let go, because कुछ चीजें हैं, as the question was asked, कि कुछ क्या है जो हमें अभी और ध्यान देने की जरूरत है. So some things, some fights, some blames that were still, you know, deep there in your mind. ये चीज क्यों हुई, वो चीज का डर, पेन, फियर, या जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशन हमने अपने अंदर रखे हुए हैं, यू नीड टू लेट दोज फीलिंग्स गो. अब उन चीजों को जाने दो, उन फाइट्स को जाने दो, एंड यू नो, गेट इन टू दिस रीबर्थ फेज, बिकॉज न्यू थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू. ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप ऑफ योर्स. सो प्लीज प्लीज कीप मैनिफेस्टिंग इट. ओके,